Hello students, today we are going to start our last topic in the cells chapter, that is the difference between the plant cell and the animal cell. Okay, but before we going to start our last topic in the cells chapter, let us take a brief preview on the previous topics. Okay, so first of all we have started the chapter from what is the cell theory. The cell is basic definitions is given as the cell is the smallest unit of life, or you can write that the smallest living thing in our body is defined as the cell. Cell is the basic structural and functional unit of the living organisms. New cells arise from the pre-existing cells. All microorganisms are composed of one or more cells. Okay, if the organisms contain the one cell, it will be known as the unicellular organisms, and if the organisms will contain the one more than the one cell, then it will be defined as the multicellular organism. Okay. Also, Robert Hooke was the first scientist to discover the existence of the cell with the help of the microscope in 1965. Okay, he observed thin slice of cork under the microscope and saw the honeycomb structure. Okay, these types of the basic concept we have already understand. Now we have defined that the unicellular and multicellular organisms. Okay, then we have defined the cell shape and cell sizes. Parts of the cell we have already discussed: the cell membrane and the cell wall. What is the cell membrane? The outer membrane of the cell that controls the entry and the exit is defined as the cell membrane or cell wall. Cell wall is provide the rigidity, supports and protection to the cell. It also gives the shape and size found in the plants and fungi and bacteria. It means that it is the most important part in the cell because it provides the rigidity and protection to the cell. So that is why it is the most important part in the cell. Okay, then we have discussed the cytoplasm, or the portion of the protoplasm lying inner to the cell and outer to the nuclear membrane is defined as the cytoplasm. Then we have discussed the nucleus, then the nuclear membrane. What is the nuclear membrane? As the same as the cell membrane. Cell membrane has the cell walls member, and the nuclear membrane is the nucleus walls member. Okay, surrounded by the nucleus, surrounded to the nucleus, made of the two layers. Okay, it also provides the protection, and it also allows material to enter or the exits from the nucleus. We have discussed the chromosomes. It is the basic DNA present in the nucleus. It is responsible for the genes from one generation to another. Okay, it means you have the same nose or same eyes of your parents, or also regarding to your grandparents. Okay, so that is come to in the genes, and that is depended by the chromosomes. Then we have started the different parts of the cell organelles. In that we have discussed the plastids. Plastids are the large organelles characteristics of the plant cell, that is basically given as the chloroplast and the chromoplast. Chloroplast are the cell organelles in the plant cell that is give the green color and also give the help in the process of the photosynthesis. It means they have to make the food, then it requires the chloroplast. If the chloroplast will not present in the plant, then the photosynthesis process will doesn't take a place. Okay, then chromoplast, it is also providing the color other than the green. Okay, then we have discussed the mitochondria. They are the rod shaped or spherical structure. Okay, it is given here. Okay, given here in the figure. It is called as the powerhouse of the cell. I have already tell you that it can come in the fill in the blanks, or it can come in the MCQ type question, that what is the powerhouse of the cell. And there are the 4 MCQ will be given: nucleus, mitochondria, chromosomes or ribosome. Then you have to tick or write the mitochondria. Okay. Then we have discussed the endoplasmic reticulum. It is the network of membrane. It provides the skeletal framework to the cell, moves material around the cell. यानी कि अगर मटीरियल में अगर हम लोगों को सेल में कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवानी है, तो वो कैसे करवाएंगे हम लोग? वो करवाएंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प के मदद से. ओके, इट प्रोवाइड्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल. यानी कि वो जो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन जो दिखता है सेल का, वो किसकी वजह से दिखता है? वो हमको दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से. उसके बाद है रिबोसोम्स. जनरली रिबोसोम्स जो है वो क्या है? तो ईच सेल कंटेन्स द थाउजेंड्स ऑफ रिबोसोम.
रिबोसोम्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ होते हैं और सेल के अंदर, वो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल्सो इट विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड प्लॉट थ्रू आउट द सेल। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिबोसोम्स होते हैं और रिबोसोम्स जो होते हैं वो वहाँ पर ही घूमते रहते हैं। गोल्गी एपरेचियस और गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टेक्ड वन अबव द अदर, इट इज कॉल्ड एज द गोल्गी बॉडीज, स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस बाय द सेल, सो दे आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि कोई भी मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर वो जनरली क्या होता है, वो होता है गोल्गी बॉडीज के अंदर स्टोर, और स्टोर होने के बाद उसको क्या कहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। It will be also come in the fill in the blanks types question that what is the storehouse of the cell, that you can write that the Golgi complex or Golgi bodies it will be the storehouse of the cell, यानी कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी स्टोर हुई होती है इस वजह से। What is the vacuoles? Vacuoles यानी कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी खाली जगह पड़ी हुई होती है जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। स्पेस में जैसे हम लोग खाली जगह को वैक्यूम कहते हैं, वैसे ही हम लोग सेल के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहेंगे, वैक्यूल्स कहेंगे। वैक्यूल्स जो है वो क्या है, तो एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, इट स्टोर्स और एक्सेस ऑफ द वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन अमीबा इट हेल्ड फूड फॉर द डाइजेशन। उसके बाद है सिलिया एंड फ्लैजिला, तो उसमें क्या है कि दे आर स्मॉल एक्सटेंशन ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, दे हेल्प इन लोकोमोशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलिया और फ्लैजिलिया वाला जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं, हम लोगों को सिर्फ वैक्यूल्स तक ही स्टडी करना है। ये जो है वो थोड़ा डीप में स्टडी किया गया है। जनरली पैरामीशियम और यूग्लेना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ये जो है वो हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। ओके, ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम है जो कि हमारे स्टडी के अंदर नहीं है। ओके ओके, नाउ सेल्स के टाइप्स है। सो बेसिस ऑन देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑफ टाइप्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स बेसिस ऑन द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स। सॉरी, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से दो टाइप्स के सेल्स बनते हैं, एक है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, दूसरे है वो यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना क्लोरोप्लास्ट है, वो भी प्रेजेंट नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है। Bacteria and blue-green algae are the examples of, these are the examples of prokaryotic cells. Reproduce asexually by budding and fission. अगर इस सेल्स को रिप्रोडक्शन करना है तो वो एसेक्सुअली बडिंग और फिजन की प्रोसेस से उसको क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ये बडिंग और फिजन की जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, कि बडिंग और फिजन से रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेल ऑन द अर्थ, यानी कि फर्स्ट टाइप के सेल जो है अर्थ के ऊपर बने होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत ही स्मॉल होते हैं ये सेल, 1 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। ये जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर के सेल्स है। ओके, एक्सेप्ट द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज इट इज कम इन दी prokaryotic cells. So besides the bacteria and blue-green algae, all the organisms are come in the eukaryotic cells. इसकी साइज जो होती है जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर की होती है और बहुत ज़्यादा लार्जर ये होते हैं कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। तो these are the basic difference. Question number 1, write the difference between prokaryotic cell okay. Question number 2, function of Golgi bodies. Okay, so this is the animal cell. You have to draw it from the textbook. Okay, question number 3, draw animal cell.
क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ प्लांट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ। आपको ड्रॉ करना है सेल जो है, सेल के अंदर सारी पार्ट्स आ जानी चाहिए। गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल सेल है, इसके अंदर गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है यहाँ पर। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने पहले लेक्चर में भी बताई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्गी बॉडीज। ओके, तो आपको लर्न करना है और साथ साथ में ड्रॉ भी करना है, ये जो है वो टॉपिक। ओके, ये क्रॉस सेक्शन एनिमल सेल है, यानी कि इसको अगर मैं, ये 3D वाला व्यू है, इसको मैं अगर ऊपर से देखूं तो मुझे कुछ इस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मुझे मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर मैं देखूंगा ना तो कुछ इस तरह से मुझे व्यू जो है वो मिलेगा। इसके लिए मुझे ये जो है वो क्रॉस सेक्शन व्यू दिया गया है। प्लांट सेल है वो भी आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सारी चीज़ें आ जानी चाहिए यहाँ पर। आप लोग सिर्फ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेचर, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और रिबोसोम्स को भी लिख सकते हो। ओके, इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं इसमें, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। पर आप एक ही याद रख सकते हो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो याद रह जाए। ओके, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर पॉज करके भी आप यहाँ से भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो अगर आपकी जगह पर होता तो यही करता है, मोबाइल में से स्क्रीन को पॉज कर देता और फिर इसी में से ड्रॉ कर लेता, ताकि आप लोगों को क्या हो, इजीली समझ में भी आ जाए और आप लोग इसमें से ही पार्ट ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में से ही ड्रॉ करना, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये लास्ट टॉपिक है आपका। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं। ओके, लार्ज साइज और मोर इन द नंबर्स होते हैं, इसमें थोड़े से स्मॉल नंबर में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। रिबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। शेप जो है फिक्स्ड होता है, इसका इरेगुलर होता है। गोल्गी एपरेचर्स यानी कि गोल्गी बॉडीज दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है और साइज जो है लार्जर है और इसकी स्मॉल है। ओके, ये दोनों डिफरेंस है। आप लोगों को इसी तरह से डिफरेंस जो है वो लिखना है तो बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाए या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द मटेरियल। ओके, एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन इन द लास्ट लेक्चर। ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section or you can ask me in the Instagram or you can ask me on the WhatsApp. Till then, bye bye everyone and take care of yourself and prepare for the final examination. And okay, surely we will meet in the next lecture. Till then, bye bye everyone.